Good morning everyone. Welcome to your accountancy lecture. Today we are going to start with the issue of debentures as collateral security. It is the same case Rajay that we have done in issue of shares. ये same chapter है, similar है as issue of shares. Collateral security, I think you know all that what is the collateral security. Collateral security is the secondary security which you gave to the banks in addition to the primary security in case of taking loan. Clear? So this is the collateral security. Now how will you treat the debenture issued as a collateral security? It can be in two ways. First method, as you all know, in case of shares also we will not pass entry, but in second method we will pass an entry and post it in the balance sheet also. Now, the first method, when journal entry is not passed, entry for the issue of debentures as collateral security is not passed in the books of accounts at the time of issuing such shares. It is shown under the head secured loans in the equity and liability part of the balance sheet, and debentures have been issued as the collateral securities as follows. Clear? कि अगर आपने फर्स्ट मेथड यूज़ करना है तो आप डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में जो है इक्विटी और लाइबिलिटीज़ के अंदर एज अ collateral security जो है वो शो कर दोगे. ठीक है. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपके ये डिबेंचर्स आएंगे 5 लाख. ठीक. और अगर आपने इनको नोट्स टू अकाउंट्स में बताना है नीचे तो यू हैव टू मेंशन हियर इट एज कोलैटरल सिक्योरिटी टर्म लोन फ्रॉम बैंक. ठीक है. अमाउंट्स इसमें इमेजिनरी हैं. आफ्टर दैट डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर द शॉर्ट टर्म लोन. ये लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए है फ्रॉम बैंक और ये है फॉर शॉर्ट टर्म लोन. ठीक है. शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए भी सिंपल ही है. अगर आप फर्स्ट मेथड यूज़ करोगे तो कोई एंट्री नहीं पास करोगे, जस्ट इसको शो ज़रूर करोगे अंडर द बैलेंस शीट. इफ़ इट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म देन यू विल पोस्ट इट अंडर द नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और इफ़ इट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म you will take it under the head current liabilities under short term borrowings. Clear? Now the second method where journal entry is passed, debentures issued as collateral security are recorded in the books of accounts in the second case. इसमें एंट्री क्या बनेगी? आप एक स्पेशल अकाउंट ओपन करोगे जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट. ठीक है. और क्रेडिट करोगे आप अपने डिबेंचर्स को. इट मीन्स डिबेंचर कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड. क्लियर? सो व्हेन लोन इज पेड टू द लेंडर द अबव एंट्री इज कैंसल्ड बाय पासिंग अ रिवर्स एंट्री. ये तब एंट्री पास करनी है जब लोन रेज हुआ है. तो एंट्री विल बी डिबेंचर सस्पेंस टू 9%, 6%, whatever is the category is mentioned, that you will write here with the debentures account. Clear? Now disclosure of the debentures issued as a collateral security in the balance sheet. How you will show it in the balance sheet? Debentures issued as collateral security being for the loan of the company are shown in the balance sheet and under notes to accounts on the loan secured, जैसे हमने फर्स्ट केस में भी किया है जिसमें हमने एंट्री पास नहीं की है. फॉर एग्जाम्पल इफ द बैंक लोन इज शोन एज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देन डिबेंचर्स इशूड एज collateral securities are shown in the notes to accounts on the long term borrowings. अगर the underlying principle being to disclose the security given for the borrowings, debenture suspense account is shown as deduction from the debentures account. It is shown as follows. क्लियर? ये देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारे पास ये टर्म लोन है. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा 6,000 9% डिबेंचर्स 6 लाख टोटल था. जो आपने कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर्स इश्यू किए हैं दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम दी टोटल डिबेंचर्स. ठीक है. तो इट विल बिकम नील एंड यू विल गेट हियर अमाउंट 5 लाख. रजे इस केस में टर्म लोन आपने जो लिया है दैट इज़ ऑफ 5 लाख. ये इमेजिनरी फिगर्स हैं, लेकिन अगर आपने उस लोन के अगेंस्ट कोई कोलैटरल सिक्योरिटी इशू की है दैट यू विल शो इन नोट्स टू अकाउंट्स. ठीक है. उसमें डिबेंचर सस्पेंस जो क्रिएट किया है वो उसकी कोलैटरल सिक्योरिटी के अमाउंट को नील कर देगा. तो आपका टर्म लोन जो है वो कितना रहेगा? 5 लाख का, विच विल बी यूर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. ठीक है. ये तब यूज़ होगा जब आप अपने डिबेंचर्स की अमाउंट पे नहीं करोगे तब. क्लियर? एंट्री पास करनी है सेकेंड केस में. नाउ इन द फर्स्ट केस illustration 20, let's see. Hayat Limited took loan of 8 lakh from State Bank of India and issued 10,000 9% debentures of ₹100 each as collateral security. ठीक है. How will you issue of debentures be shown in the balance sheet? बैलेंस शीट में ये 8 लाख का जो इशू ऑफ डिबेंचर्स है उसको कैसे शो करेंगे? देखो लोन लिया उसने वो तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जाएगा ही जाएगा. ठीक है. लेकिन अगर फर्स्ट केस है जिसमें जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, इन दैट केस आपको कोलैटरल सिक्योरिटी नोट्स टू अकाउंट्स में भी शो
शो नहीं करनी है. यू हैव टू जस्ट पास दैट सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ, उसके नीचे आपने ये लिख देना है कि इसकी सिक्योरिटी दी हुई है, बस इतनी. अदरवाइज इसको शो नहीं करना. नोट्स टू अकाउंट्स में भी 8 लाख अमाउंट ही जाएगी व्हेन एंट्री इज नॉट पास्ड. बट व्हेन एंट्री इज पास्ड, एंट्री क्या पास करोगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट. ठीक है, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 आपने डिबेंचर्स इशू किए ऑफ ₹100 ईच. इट मीन्स इट बिकम्स 10 लाख. ठीक है, और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तब आप यहाँ पे टर्म लोन लेते हो. टर्म लोन के बाद जो आपके डिबेंचर्स हैं, आफ्टर दैट जो 10 लाख के आपके डिबेंचर्स हैं, 8 लाख के आपके डिबेंचर्स हैं, उनमें से आपका टर्म लोन ही रिड्यूस हो जाना. टर्म लोन तो उतना ही रहना है. ठीक है, बस यहाँ पे एक स्पेसिफिकली आपने शो करना है कि इतने डिबेंचर्स हमने हमारे कोलेटरल सिक्योरिटी में गए, जो इशू किए हैं उन्होंने, देखो. ठीक है, लेकिन जब डिबेंचर सस्पेंस पे हो जाएगा, अमाउंट कवर हो जाएगी, तो आपके पास उसकी अमाउंट क्या आएगी? निल, जो कि आपके लिए ड्यू नहीं है. ड्यू सिर्फ क्या रह गया? टर्म लोन, दैट इज 8 लाख, जो आप यहाँ पे बैलेंस शीट में शो करोगे. नॉन पेमेंट ऑफ लोन सिक्योर्ड बाय द डिबेंचर्स. रजे सिंपल सी बात है कि जब आपके लोन जो हैं आप पे नहीं करोगे तो ये कोलेटरल सिक्योरिटीज़ जो आपने इशू की होगी उसको वो रियलाइज़ करवाएंगे. इट मीन्स प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ अगर फिर भी कवर नहीं हो पाता तो आपकी जो कोलेटरल सिक्योरिटी है उसको भी यूज़ किया जाएगा, रियलाइज़ किया जाएगा. लेट्स सी. If the company does not pay the loan along with interest, the lender can recover the due amount by selling primary or principal security or by redeeming the collateral security, that is debentures. Clear? So accounting treatment क्या है? No immediate liability is created at the time of issuing debentures as collateral security. जब हमने, तभी तो हम लोग ये कह रहे हैं ना कि हमने इसके डिबेंचर से माइनस कर दिया, कोई लाइबिलिटी नहीं अराइज हुई, इसीलिए तो हम लोग ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी. डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या क्रिएट करते थे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स. जब डिबेंचर्स इशू किए हैं कोलेटरल सिक्योरिटीज़, जब उनको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, रिवर्स एंट्री पास हो जाती है डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस. The liability arises when the lender exercises his right vested in the collateral security. लाइबिलिटी तभी अराइज होती है जब जो लेंडर है वो इसके अगेंस्ट अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज करता है. तब एंट्री क्या पास होगी? लोन अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स. जो भी आपने डिबेंचर्स जो हैं वो इशू किए हुए थे एज कोलेटरल सिक्योरिटी, अब वो उसको रिडीम कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे विद द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द लोन. नाउ Z Limited issued 10% debentures of ₹100 each as collateral security for a loan of ₹8 lakh from Dina Bank. ठीक है, कितने शेयर्स उन्होंने डिबेंचर्स जो हैं एज ए collateral security दिए हैं? 10,000. The company was unable to pay the loan on which interest payable was ₹2 lakh as on 31st March. It means 8 लाख का आपके डिबेंचर्स थे और उसमें 2 लाख का आपका इंटरेस्ट था जो आपने पे नहीं किया, तो it becomes 10 lakh. ठीक है, Dina Bank on 31st March 2020 exercised the right vested in by way of the debentures being issued as collateral security. अब उन्होंने इन डिबेंचर्स के लिए अपना राइट एक्सरसाइज किया. तब एंट्री बनेगी 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस विद रुपीज फुल 10,000 into 100, इट मीन्स 10 लाख. क्लियर? आफ्टर दैट 8 लाख की अमाउंट लोन की उन्होंने पे नहीं की, तो उसके लिए लाइबिलिटी अराइज हो गई. एंट्री बनेगी लोन अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स, यानी 8 लाख, 2 लाख और 10 लाख. क्लियर? इन दिस वे यू विल पास द एंट्रीज. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास वेरियस केसेस ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिडेम्पशन. नाउ यू ऑल नो दैट द डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट ऑल्सो. नाउ what is the effect of debentures at the time of, if you know that they are going to be redeemed after a certain period of time. Now whether they are going to redeemed at par, premium, redemption can be done at par or premium. ठीक है, तो वट एवर द केस में बी देर इज द इफेक्ट ऑफ द रिडेम्पशन एट द टाइम ऑफ इशू यू हैव टू शो. ठीक है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल. स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो डू कंसिडर द बैक क्वेश्चंस ऑल्सो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी.
After that we are going to do difference between premium on the issue of debentures and premium on the redemption of debentures. Now premium on issue of debentures, जब आप issue करते हो debentures को तो it is a capital profit, ठीक है, बिकॉज आप debentures issue कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आपके पास प्रॉफिट आप प्रीमियम आपको मिल रहा है. लेकिन रिडेम्पशन के टाइम पे आप पे करते हो, तो जब आप प्रीमियम पे करते हो तो दैट इज़ योर एक्स्ट्रा लॉस, दैट इज़ योर कैपिटल लॉस. क्लियर. जो प्रीमियम है एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द डिबेंचर्स दैट इज़ योर रिजर्व, ठीक है, दैट यू विल यूज फॉर द पर्पज ऑफ द रिडेम्पशन. बट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज योर लाइबिलिटी. क्लियर. इसको आपने पे करना है. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ आउटफ्लो ऑफ कैश. रजे जो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आउटफ्लो ऑफ कैश बिकॉज इट इज़ एन इनफ्लो ऑफ कैश बिकॉज मनी इज कमिंग इन, ठीक है. बट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है उसमें आपका पैसा जा रहा है, सो इट इज़ एन आउटफ्लो. हाउ शोन इन द बैलेंस शीट? Premium on issue of debentures is shown on the equity and liability sides of the balance sheet under the head शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, और उसका सब हेड क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस. उसके अंदर हम शो करते हैं. लेकिन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इट इज शोन इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड नॉन करंट लाइबिलिटीज. जो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हम लिखते हैं, उसी में आपका प्रीमियम भी आपकी लाइबिलिटी बन जाता है और हम उसको उसी में ही शो कर देते हैं. क्लियर. सो दिस इज ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स. डू इट इन डिटेल. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू स्टूडेंट्स.